Shinandadam Vande Radhika Charanakam Gopijana Samayuktam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. First of all, I pronounce to our Gurudev, Vishnupad Vedanta Swami Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, our Shiksha Gurus, Nityamila Prashya Gaur Govinda Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, all Vaishnavas, Dharma Pranams. Today is the disappearance of Sri Haridas Thakur. He was Namacharya. Chaitanya Mahaprabhu said, Apana charya kore na kore prachar, apani prachar kore na kore achar, achar prachar nam dovikacha, tumi jagat guru, tumi jagat raj. So much love glorified him. For Haridas, some people practice but do not preach, and some people preach but do not practice. But you are the best of the Aryans, you are Jagat Guru, because you do both. How much Mahaprabhu glorified. So each of Mahaprabhu's devotees was given different responsibility. So especially Haridas Thakur was given the responsibility of Namacharya, the Guru of chanting Harinam. So he would chant 3 lakh of Harinam a day. 300,000. What we do in a month, he would do in a day. 64 rounds he would chant in the mind, 64 rounds he would do japa. Japa means when only you can hear. And 64 rounds he would chant loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu gave him so much respect. You see in Harinam Chintamani, like with Ramananda Roy, Mahaprabhu asking the questions to Ramananda Roy. In the same way, Mahaprabhu himself asking questions on Nam Tattva to Haridas Thakur. So you would imagine how much he was worshipped. So, if you read Chaitanya Bhagavat, so much glories of Haridas Thakur is there, so much glories. Especially, he was always ready to defend the holy man. He had great friendship with Advaita Acharya also. That is famous pastime. When the Shraddha Patra should be given to the most worshipful person. When we offer Shraddha, a prayer to the deceased person, that the deceased person gets so much benefit, top class person is given to them. In Karma Kand, the Brahmanas eat. But in Vaishnava, we have a little different vision. So who is the topmost Brahman? Advaita Acharya was the guru of the Brahman community, and Shantipur, also Mayapur, no doubt. Many people were invited. You could imagine so many Bhattacharyas, so many Dvivedis, Chaturvedis, Mishras. All were thinking, I will get, I am most worshipful, I am from exalted family. But Haridas Thakur was outside, humbly. Advaita Acharya called him. And in front of all the Brahmanas, he gave him the Shraddha. And all those Brahmanas became insulted. What is this? This Haridas Thakur is outside of Varnashram. How can he be greater than us? Insulted. They went home. But Advaita Acharya never cared. He said, by feeding Haridas Thakur, then millions of ordinary Brahmanas are fed. Viprat Visad Guna Yukta Aravinda Nava Aravinda Vimukta. Bhagavatam, sorry. One may have all 12 Brahminical qualities, but he is not devotee of Bhagavan, he is not dear to him. Tato Jayam Tato Gayam Sapuchistamita. Whatever
one should offer to him, high class Vaishnava, even though he's Swapakshabari. He may come from family of dog eaters. But whatever he gives, Bhagavan says, I accept. Whatever he eats, I eat. So in this way, Advaitacharya displayed extreme faith in Haridas. And when all those brahmanas were insulted, they left without eating, they were hungry. So when they went home to try to cook, they could not make any fire because Haridas is Lord Brahma, the presiding deity of Yajna in one sense. So they tried to cook, could not cook anything. They're very hungry, they realized, we have made great offense to the feet of Haridas. Therefore, they came back, realizing Advaitacharya is not ordinary person. In this way, Haridas Thakur was chosen to glorify the holy name. So, one more pastime is there in Chaitanya Bhagavat. He was so much worshipped even by the Hindus, the Brahmanas. Anyone who saw him chant Harinam, everyone felt so much happy. So the Muslim king, being instigated by the envious Qazi, called Haridas Thakur and put him in jail. In the jail were many other Hindus. So when they saw Haridas, they became so happy. Because Vaishnava have all 8 mystic perfections. They thought, now we will be free. So all approached Haridas Thakur and did dandavats. And they said, please bless us. So he blessed them, stay as you are. They all became depressed. Because in jail is no nice life, no good food, no relatives, no friend. So stay as you are, they became depressed. Then he smiled, you cannot understand the meaning of my blessing. Now you have no material enjoyment. You are in Sadhu Sangha and your mind is fixed on Krishna. Stay like that. So the king interviewed Haridas Thakur. Oh Haridas, you have so much security to be born in a Muslim family. Why you are giving up the high-class sadhu mentioned in the Quran to follow the low-class activities of the Hindus? So Haridas Thakur gave a wonderful answer. Bhagavan is not 5, 10 or 15. What the Puranas describe as, what the Upanishads describe as Ishvara, Brahma. What the Sattva Shastras is called Bhagavan. What the Quran calls Allah. This is not 3, 4 different persons, this is one. He controls everything. He is also present in the heart of everyone. So why I'm acting like this, why I'm chanting Harinam, it must be because this is His desire. If it was not His desire, I could not do it. Everyone became very happy hearing His answer. But the king had bad association, so he threatened Haridas Thakur. You give up chanting, if you do not give up chanting Harinam, we will beat you to death in 22 marketplaces. Means like here to Lloyd Bazaar, one marketplace. Lloyd Bazaar to Anand Bazaar, another marketplace. Anand Bazaar to ISKCON, another marketplace. Imagine. 22 marketplaces. Haridas Thakur said, you can chop my body to pieces, but each piece will chant Harinam. I cannot give up the chanting of Harinam. So the king said, if he survives the beating, then we will accept him as a Mukta Purush, as a peer in his land, as a perfected soul. So the guards were very envious. They beat Haridas Thakur viciously. All the flesh of his body was taken away. But he not cried, ooh. We cannot even stay awake in Harikatha. How will we survive? So he did not weep. He chanted Hare Krishna, Hare Krishna. Sometimes he would look at the guards and smile. Hindus offer the guards so much bribe. Don't kill him, stop beating, we will give you so much wealth. But those guards were very demonic. They tried to kill him, but they could not kill him. Finally they wept
if we do not kill you, the king will kill us. So Haridas Thakur said, my living is giving you disturbance. So he went into Samadhi. They tried to lift his body, they could not lift. Then the king ordered, throw his body into the Ganga. Because if you bury him with the other Islamic people, he will go to heaven. But if you throw him in the Ganga, then he will be caught in birth and death again and again, like the rest of the Hindus. They cast Haridas Thakur in the Ganga, but he floated. Then again, Hare Krishna, again with new body, full of enthusiasm, he came out of the Ganga. Hari Bol, Hari Bol. He went to the king. When all the Muslims saw Haridas Thakur, they fell at his feet, begged forgiveness. The king said, wherever you go, whatever you do, we will not disturb you. But still the king and all those Muslims died of smallpox in 1 or 2 months. Still they had a horrible death as a result of Vaishnava Aparadha. Because Vaishnava may forgive you, but the foot dust of the Vaishnava, the followers of the Vaishnava, and Bhakti Devi will not forgive so easily. In this way, Haridas Thakur showed many, many glories. When Chaitanya Mahaprabhu was in the house of Srivas, he manifested the mood of Vishnu after coming back from that. Then all the devotees came. Mahaprabhu said, I'm hungry, feed me. They brought millions of bananas, thousands of kilos of rice. He took everything. Then he said, take a benediction. So everyone according to their Shraddha, Chaitanya Mahaprabhu was giving benediction. He asked, where is Haridas? Haridas Thakur was outside. Bring him. I think Haridas Thakur fell unconscious when they heard Chaitanya Nimai Pandit is Bhagawan, he's calling. He fell unconscious, but the Lord had ordered, bring him. So they brought the unconscious Haridas Thakur. Then Haridas, the Mahaprabhu was in the mood of Vishnu. Oh Haridas, when they beat you, you felt no pain. Why? Then Chaitanya Mahaprabhu showed his back was covered by the beating, the whip marks. I took that beating, therefore you felt no pain. Haridas Thakur wept and fell unconscious. Then Mahaprabhu said, Haridas Thakur, for you I incarnate, for you. Now this is in Chaitanya Bhagavatam. For you I incarnate. He's chanting so much sincere. So today is his disappearance. So we must talk about that. Haridas Thakur would live in Siddhapaku, one tree made from a toothbrush of Jagannath. Because out of humility he would not go to the temple of Lord Jagannath, but every day Jagannath in the form of Lord Chaitanya would bring him prasad. Every day. Swarup and Sanatan also did. One day Mahaprabhu came and Haridas was lying, like very sick. When he came, then Haridas Thakur could not take prasad. Mahaprabhu gave him. Haridas Thakur said, I cannot take prasad, I have not finished my chanting of Harinam. How can I eat? We're eating very nicely, no problem. 1 round, 2 round, no problem. Haridas Thakur, I cannot eat, I have not finished my worship, I cannot take it. Then Mahaprabhu said, oh Haridas, you are already perfect, no need to follow so much strictly. Already you've achieved all perfection. One who remembers Krishna, what need of any tapasya? No need. And one who forgets Krishna, what need any tapasya? No need, well, useless. So you already you are not sadhak, you are perfected, devotee. So you reduce your harinam. When Haridas Thakur heard this, he felt very much sad. So he requested Lord Chaitanya, I am like an insect. And with you are many, many great and worshipful Vaishnavas. If one insect dies, no one cares. But still I have one desire, and you are Bhakta Vatsal. I have one desire. Keeping your lotus feet on my chest, I will chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And my eyes like bumblebees at your lotus feet, I will give up my body. This is my desire.
When Chaitanya Mahaprabhu heard that, Chaitanya Mahaprabhu began weeping. Oh, Haridas, how can you leave me? But Bhagavan is very kind, he will fulfill your desire. So next day, then Chaitanya Mahaprabhu began glorifying Haridas. Like he had thousands of mouths, glorifying Haridas Thakur's bhajan. All the Vaishnavas were struck with wonder. The next day, Lord Chaitanya came and what Haridas Thakur prayed for, that happened. Chaitanya Mahaprabhu kept his feet on his chest and chanting Harinam. Haridas Thakur left the world on this day. So how much respect we should have towards the body of the Vaishnavas. Out of foolishness we think Thakurji is made of Acho Vishnu Sivade Gurusu Nanamati Vaishnavanam Jataburi. Out of foolishness we think the deity made of wood or metal. We think Guru to be an ordinary person. We think Vaishnava according to caste. We think the mantras of Vishnu which purify the three worlds to be ordinary sound, Sabda Samanya Muni. We think ordinary sound. So, Chaitanya Mahaprabhu taught us Vaishnava Deha Prakrita Kabunai. The body of a Vaishnava is never material. Therefore Chaitanya Mahaprabhu with his own hands, he carried the body of Haridas Thakur. Just 1 minute if I may. When Gokashodas Babaji Maharaj left this world, out of humility he said, I could not do bhajan, so when I leave the body, you should tie my feet to some horse and pull me through the streets of Navadvip. I can touch the dust of Navadvip, I will be purified. So out of foolishness, some followers of Gokashodas Babaji Maharaj were doing that activity. They were actually trying to bind his feet to a horse. That time Saraswati Thakur, Bimal Prasad that time, Prabhupada had not taken sannyas. And he chastised them, you cannot understand the humility-filled words of my Guru. Even Chaitanya Mahaprabhu carried the body of Haridas Thakur. Means how much respect towards the Vaishnava. The body of a Vaishnava, it is not material. So anyway, so Mahaprabhu showed us like this. And dancing, he carried the body of Haridas Thakur and they gave him samadhi. Mahaprabhu, they bathed his body, his vigraha, bathed in the ocean. Mahaprabhu said, now this ocean is Mahatirtha, purified by the lotus feet of Haridas Thakur. And Mahaprabhu with his own hand dug and gave the samadhi of Haridas there in the sands of Puri. Then Chaitanya Mahaprabhu went himself collecting donations for the Samadhi feast. In this way Chaitanya Mahaprabhu gave so much respect to Haridas Thakur. Because what is dear to Bhagavan, again and again, not wealth, not beauty, not education. What is dear to Bhagavan is bhakti, and Haridas Thakur, topmost example. Today is his Tirubhav, so we remember even one drop of Haridas Thakur's ruchi and nishta in Harinam. Our life can also be successful. What can I say? Sri Namacharya Haridas Thakur ki. भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समाधत्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निचला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निचला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए ऐसी कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समय वैष्णव जन्मार्थ जन सभी के प्रति वंदन है। आज श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के तिरुभाव की श्री हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मा होकर के भी जबलपुर में उत्पन्न हुए। जसोहर जिला के अंतर्गत बूढ़न ग्राम में भक्ति की महिमा जगत में प्रचारित करने के लिए बड़े श्रेष्ठ जन भी छोटे छोटे कुल में जन्म लेते हैं, जिससे सभी कुल सभी वर्ण सभी जाति के लोग भगवान की भक्ति कर सके। सिखाने के लिए बताने के लिए जैसे गरुड़ जी पक्षी कुल में जन्मते हैं, पक्षी जिसको चिड़िया बोलते हैं, हनुमान जी कपि कुल में, जमवान जी भालू के रूप में आते हैं, बिगुल जी दासी पुत्र होकर आते हैं, सभी सवर जाति जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं ऐसे से जगह पर आते हैं, लेकिन भगवान के कितने प्रिय हैं। जो वैष्णव हो जाते हैं तो सब वर्ण जाति से मुक्त होकर के भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। क्योंकि प्रधानता भजन की है। यदि शुद्ध भक्ति शुद्धाचार विचार है उस वैष्णवता को स्वीकार करता है तो वहां पर कोई जात पात नहीं पूछता। तो भगवान का भजन कर तो भगवान के हो जाते, भगवान के हैं। तो हरिदास ठाकुर जी जन्म से ही भागवत रुचि परायण है, विशेष करके नाम में उनकी रुचि है। जब भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तो उनको हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, रोमांच होता है, पुलक होता है, अश्रु होता है और कई बार तो मूर्छित भी हो जाता है। नाम उच्चारण के बाद जो लक्षण होते हैं वो सब उनमें प्रकट होते हैं। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तजा जातानुरागो दुत चित्त उच्चै हसत अथो रोदति रोति गायक उन्मादवत नित्यति लोकवाय। जिनका व्रत हो गया है हरि नाम कीर्तन एवं व्रत स्वप्रिय नाम, सभी भक्तों के अपने अपने प्रिय नाम होता है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने न ग्वालों ने तो मुझे पुकारा। ये सबके अपने अपने प्रिय नाम। हरिदास ठाकुर जी का जो प्रिय नाम है उसका उच्चारण करें। ये मत सोचे कि हरि नाम आज और कल का, हरि नाम जो हरे कृष्ण नित्य है। महापुरुष उसको प्रकाशित किया, उनको जगत में विस्तार के प्रचार किया, लेकिन शास्त्र वो है उसी नाम पर ग्रहण करते हैं। कलयुग का नाम हरि नाम, कलयुग का जो युग धर्म है हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गते। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब ऐसे बोलते हैं तो उनकी वाणी गदगद हो जाती है, चित्त द्रवीभूत हो जाता है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी चित्कार करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। उन्माद जैसे कोई उन्मादग्रस्त, कोई पागल व्यक्ति हो, पिशाचग्रस्त,
लोकवाणी है। लोग क्या बोलेंगे, कौन हमको देख के हंस रहा है, कौन हमारी निंदा कर रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, वो सब ध्यान में। क्योंकि अपने रस में, अपने सुख में, अपने भाव में डूब गए। अगर लोग अपेक्षा करेंगे लोग क्या कहेंगे, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। हरि नाम न करो तो भी कहेंगे, करो तो भी कहेंगे। क्योंकि संसार में दो तरह के लोग, कुछ ऐसे लोग हरि नाम नहीं करेंगे तो कहेंगे हरि नाम नहीं करता, ऐसा नहीं, उसका जीवन बोझ है। वो भक्त श्रेणी के लोग हैं जो हमें हरि नाम के प्रेरित करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हरि नाम करेंगे तो क्या चिल्ला रहा है, क्या ऐसा परेशान कर रहा है। अभी चतुर्मास चल रहा है, भगवान सोए हुए हैं और ऐसे में तुम जोर से चिल्ला रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे। भगवान उठ जाएंगे नींद से, उन सबको सिर काट के फेंक देंगे, उनको नींद से जगा दें। ऐसे लोग निंदा करते, जोर से बोलने से क्या होगा, मुंह मुंह बोलो, मन ही मन बोलो। ऐसे हरिदास ठाकुर जी के साथ भी हुआ। इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा? धीरे धीरे नाम करने से क्या भगवान नहीं सुनते? भगवान क्या बहरे हो तो अंदर में बैठे हुए, सब तो देख रहे सुन रहे, इनको अगर जोर से क्या चिल्ला सुना। तो ऐसे निंदा करने वाले भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन हरिदास ठाकुर किसी की परवाह नहीं करते। क्योंकि जिनको हरि रस का चस्का लग जाता है किसी को नहीं कहते। जैसे कुछ पीने वाले व्यक्ति जो पीता है और पी करके मत के गली में चलता है तो कौन क्या बोलता है वो ध्यान नहीं देता। कुत्ता भूख रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, बोल रहा है। परिबद्धतु जनो जथा तथा अयम। ये संसार के लोग जो कुछ भी बोले बोले। ननु मुखरो न वयम विचारयामि। न तो मैं उनसे बहस करना चाहता हूँ और न इस पर विचार करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं। मैं तो हरि रस की मदिरा पान करके मत हो गया। उसमें केवल रोता है, गिरता है, पड़ता है, हंसता है, चलता है, करता है, क्या करता है कुछ पता नहीं, बस अभ्यास में सब करते हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर जी हरि राम में मन अपने ग्राम से चल करके फुलिया ग्राम में आए, जो शांतिपुर के आसपास का क्षेत्र है, अधिकतर से अधिकतर स्थान। और वहां आकर के वहां में रहकर भजन करने, वहां के जो ब्राह्मण सज्जन भक्तजन सभ्य लोग, इनके स्वभाव भजन को देख के बड़े प्रसन्न हुए। सब मन में सोच रहे हैं कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा वैष्णव का संग मिला जो अनायास हमारे गांव में आकर के बस रहे। क्योंकि वैष्णवों की बड़ी महिमा है और जिस देश में, जिस स्थान में, जिस जगह पर रहते हैं, उनके प्रभाव से वो जगह तो पवित्र होता ही है, करोड़ों योजन तक पवित्र हो जाता है। हम लोग कितना भाग है कि हमारे गांव में एक वैष्णव रहता है जो दिन रात भगवान नाम लेता है, तो बड़े उनको आदर सम्मान करते हैं। गांव के लोग बड़े प्रसन्न और इस कारण उनकी महिमा सर्वत्र फैलती चली जाए। बहुत जस कीर्ति हरिदास ठाकुर जी के फैल रहे। देखो जमनपुर में उत्पन्न होकर के भी ऐसा भक्त, ऐसा तो हिंदुओं में, भक्तों में ऐसा भक्त नहीं है। और एक अन्य कुल में उत्पन्न होकर कैसा भक्त जो हम लोग के उदाहरण है, उनकी बड़ी महिमा होने लगा। सर्वत्र वाह वाह जय जय। एक जन्म था जबलपुर और एक वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, आत्म धर्म का पालन कर रहे हैं, महामंत्र को चरण करे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जो जबलपुर में मुसलमानों में जो मौलवी होते हैं, जिसको काजी कहते हैं, जो कलमा आदि सिखाते हैं, नमाज कैसे पढ़ना है सब, तो उनके एक प्रकार के गुरु होते हैं, धर्म गुरु। तो काजी ने देखा तो बिगड़ गया। अरे मुसलमान जवन होकर के और हिंदुओं का धर्म का आचरण करता है, अपना कलमा नहीं पढ़ता, अपना कुरान नहीं पढ़ता,
नमाज नहीं पढ़ता, तो असंतुष्ट होकर के, असहिष्णु होकर के, कैनॉट टॉलरेट, वो सीधे राजा के पास, जमन के पास चला गया जो बादशाह था, और बोला हुजूर आपको कुछ खबर है कि नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, हमारा धर्म का बड़ा अनादर हो रहा है, हमारा धर्म रसातल में चला जाएगा, अगर ये हरिदास ऐसे हरे कृष्ण कहता रहा तो सब लोग मस्जिद जाना छोड़ देंगे, नमाज पढ़ना सब हाथ उठा के हरि बोल करने लग जाएंगे, कि हमारे पास क्या बचेगा। तो लोग इसी का एक उदाहरण देखते हैं तो उसी के पीछे चल पड़ते हैं, इसे रोका जाए, कुछ किया जाए। लेकिन वो बादशाह थोड़ा धार्मिक स्वभाव करता है, एकदम से किसी को बात को सुन करके तुरंत कुछ किया जाए, बोला ऐसा नहीं, पहले उसको बोला देखते हैं, उससे बात करेंगे, उसके बाद कुछ निर्णय लेंगे, दंड देना है कि नहीं देना है। अगर वो बात मान जाए तो हरिदास ठाकुर जी के पास एक नोटिस आ गई, खबर आई, उनके कोई मैसेंजर व्यक्ति दूत जो राजा का होता है, कुछ सिपाही आया और हरिदास ठाकुर से बोले कि बादशाह ने आपको बुलाया है अपने दरबार में। हरिदास ठाकुर बोले हम अकिंचन जन, ऐसे एकांत में रहने वाले, कुटी में भजन करने वाले, हमारे पास कोई ऐसा बड़ा महल नहीं है कि हमको टैक्स के लिए बुलाया हो, हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते, तो बादशाह ने हमको क्यों याद किया। वो अगर कोई काम कुछ उतना घबराए नहीं, ध्यान नहीं दिया, अपने मस्ती में कीर्तन करते हुए वहाँ पहुंच गए, गाते बजाते नाचते रोते हंसते, बादशाह के सामने खड़े हो। बादशाह थोड़ा समय सोचा कि आदमी है, पागल है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी गा रहा है, बैठो बैठो बैठ गए। देखने में तो बड़े सुंदर लगते हो, आंखें ऐसा लगता है लोग कमल की तरह, कमल नया अंग पड़ते बड़े सुंदर है, अपना धर्म का पालन क्यों नहीं करते। तुम्हें अपना धर्म का पालन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। क्या बोले कि तो अपने की रुचि की बात है, मेरी रुचि कृष्ण नाम में, कृष्ण नाम उच्चारण करते मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। आज उसको जो अच्छा लगता है करता है, सब स्वतंत्र। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करता हूँ, कई बार हिंदुओं में कुछ कुल में जन्मे लोग भी अगर उनको अच्छा लगता है तो मुसलमान जैसे आचरण करने लग जाते हैं। किसी का अगर जैसा स्वभाव है, कर्म है, उसी तरह तो हो जाते हैं। ऐसा तो देखने में मिलता है, तो मेरे मन में मेरी रुचि वैसा है, और ये मेरे साथ, मेरे स्वभाव के साथ मिल गया, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। और हर जीव की अपनी स्वतंत्रता है, जो जैसा है वो अपना स्वतंत्र कुछ कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो मैं हरिनाम बोल नहीं, बंद करना पड़ेगा, हरिनाम नहीं चलेगा, कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो। बोला नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई। अब ये नाम हमारे साथ इतना, शरीर के साथ, स्वरूप के साथ, स्वभाव के साथ इतना तादात्म्य हो गया कि इसको छोड़ नहीं सकते। बोले हम छुड़ा देंगे, बोले कोई नहीं छुड़ा सकता। खंड खंड है दे यदि जाए प्राण, अब क्या करेंगे, हमारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर टुकड़ा से वही आवाज निकलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि मेरे रोम रोम में, प्राण प्राण में, हर सेल्स में वो घुस गए। काने के भीतरे दिया मरे में पसी लोगो, आकुल करी लो मरता, न जाने कतेक मधु सामना में आछे को बदन छाड़ीते नहीं पाए। मेरे चंडी का ऐसी स्थिति में इतना रस है
यार इसमें मैं डूब गया, अब निकाल नहीं सकता। मैं विवश हूं, इसलिए इस शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, हो जाने दो। आप दंड दे सकते हैं, प्राण दे सकते हैं, लेकिन मैं प्राण जाते जाते भी इस नाम को नहीं छोड़ सकता। प्राण निकल रहा हो तब यही कहूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बादशाह हक्का बक्का रह गया कि क्या बोल रहा है हमारे दरबार में, और इतना निधड़क होके बोल रहा है, बेधड़क बिना भय का। बादशाह राजा होते उसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ सुकृति होता है। वो कहने लगा कि तो बहुत बड़ा पीर लगता है, जिंदा पीर है, खुदा का बंदा है। साधारण व्यक्ति ऐसे दरबार में आके नहीं बोलते, तो उनको मृत्यु का भय रहता है। मृत्यु के भय से आदमी के होश उड़ जाते, पसीने छूटते, कांपता है। अरे ऐसा बोल रहा है, मेरे सामने मृत्यु से भी नहीं डर रहा, और बोलने में इसके आंखों में कोई भय नहीं। ये तो पीर है। लेकिन वो काजी था, वो बेकल से बिगड़ गया, उसका तुम्हारे जल उठा, बोला हुजूर ये पीर नहीं है, इसको ऐसे हम जारी नहीं मानेंगे, एक शैतानी कर रहा, शैतान है, इसे दंड मिलना चाहिए। अगर इसको आप दंड नहीं देंगे तो सब देश उजड़ जाएगा, सब हरे कृष्ण करने लग जाएगा। इसलिए इसको पूरे बाजार में पीटो, पीटते पीटते इसको मार दो। इसको मर जाने से बाकी लोग सही से रहेंगे, कोई अपने धर्म से भटकेगा नहीं, बिगड़ेगा। और इसको 1-2 बाजार में नहीं, 22 बाजार में मार खाने के बाद भी यदि नहीं मरता तो मान लूंगा कि जिंदा पीर है, एक खुदा का बंदा है, या अल्लाह का दूत है। अब मर गया तो समझ जाओ कि शैतान है। इसकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन ये लोग जो उनके जो धर्म गुरु हैं, वो लोग अगर 10-20 मिल के मौलवी काजी अगर ऐसे करने लग जाए तो राजा भी घबरा जाता है, बादशाह भी उनकी बात नहीं सुनेगा, तो फिर बाद में लोग परेशान करेंगे। ये सब राजा को कर प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, उसके ऊपर आंदोलन करने लग जाएंगे। तो ये सब बोले जिसके मतलब ठीक है, दंड दिया जाए। तो जो भी क्रूर स्वभाव के लोग जो दंड देने वाले होते हैं, जिसको जल्लाद बोलते हैं, इस तरह के लोग हरिदास को पकड़ लिए और एक बाजार में ले गए, सबके सामने उसको मार देना। कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सिर में, गर्दन में, पीठ में, पैर में, पेट में, हाथ में, जहां धड़ से मार रहे, चारों तरफ से उसको पीट। ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे प्रहलाद महाराज जी के लिए असुरों ने किया था, अनेक अस्त्रों का प्रहार किया उनके ऊपर, लेकिन ये मारते मारते थक गए, उनको कुछ नहीं। इतना प्रहार होने के बाद भी हरे कृष्ण बोलते। 1 बाजार, 2 बाजार, 22 बाजार में बोले कि 2 से 3 बाजार में मारने से आदमी मर जाए। साधारण होता तो कब का इसका प्राण निकल जाता, लेकिन ये तो जिंदा पीड़, शरीर छूटता है। मारने वाले कहने लगे कि हरिदास आपको हम नहीं मार सकते क्योंकि भगवान के दूत हैं, लेकिन हम मारे जाएंगे क्योंकि हम बादशाह के पास जाएंगे और हम कहेंगे कि उसको नहीं मार पाया, तो बादशाह ये नहीं समझेगा क्यों नहीं मारा। वो सोचेगा तुमने बहुत धीरे धीरे मारा, ठीक से नहीं मारा, इसको नहीं मारा, हम तुम लोगों को मारते हैं, हमें फांसी चढ़ा देते। तुम लोग इतना तनख्वाह लेते हो, इतना आराम से रहते हो, खाते पीते हो हमारे बस, तो एक आदमी को नहीं मार पाया, तो पैसे से ना हमें वो मार देगा, हमें फांसी चढ़ा देगा। हरिदास जी बोले कि अगर मेरे लिए तुम लोगों का अमंगल होता है, मृत्यु होती है, हम ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि वैष्णव हृदय बड़ा कोमल होता है,
जब वो लोग मार रहे थे तब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे कि लोग आप ज्ञानी हो, इन्हें भक्ति की महिमा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं। और यदि स्वतंत्र नहीं, इनको ऐसा आदेश मिला है, इसलिए हे प्रभु इन्हें कोई अपराध न हो, आप इस अपराध को मत लीजिए, क्योंकि हमें पता है वैष्णव में प्रति किया गया अपराध कई जन्मों तक, कई युग तक व्यक्ति को भोगना होता है। इसलिए प्रभु आप इनका अपराध मत लीजिए, इनका मंगल करिए। क्योंकि जब वहां गए थे तो और जो वहां बंदी लोग जो थे राजा के पास में, उनका भी उन्होंने मंगल की कामना की, इन्हें भी बंधन से मुक्त कर दिया। उन बंदियों से तो हरिदास जी बोल रहे थे कि तुम लोग 2-3 दिन का रह गए, 2-3 दिन के बाद में राजा तुम्हें छोड़ देगा, 2-3 दिन के बाद तुम मुक्त हो जाओगे, और मुक्त होने के बाद में भगवान का भजन करना, पहले जैसा अपराध मत करना। तो सबकी मंगल की कामना करें, तुम लोग मंगल, तुम लोग भजन करो। और हरिदास जी योग बल के द्वारा अपने को निश्चेष्ट कर लिए, शरीर को ऐसे लुढ़का दिए मानो प्राण निकल गए, और वो लोग उसको मरा हुआ समझ के कंधे पर उठा करके राजा के पास लाकर पटक दिए, बोले थे मत। वो मरे नहीं, अपने पैसा योग बल से मृत जैसा अपने श्वास को रोक लिए। उनके नाड़ी छू रहे तो पल्स नहीं चल रहा है, श्वास नहीं चल रहा है, ये योग बल होता है। राजा ने कहा कि इसको मिट्टी में दबा दो, दफना दो। काजी बोले नहीं, इसको दफनाने से स्वर्ग में चला जाएगा, खुदा के पास चला जाएगा, पवित्र आत्मा हो जाएगा। इसको पानी में ऐसे फेंक दो, इसको पशु पक्षी खा जाए, कुत्ता बिलाड़े सब खा जाए, सड़क कर जाए। तो उसे दफनाया नहीं गया, गंगा जी उठा के फेंक। खूब आविष्ट में गंगा जी में कुछ दूर बहे, बहते बहते जब शांतिपुर के पास आए, उनकी चेतना आई और घाट से गंगा के किनारे आकर के घाट पे चढ़ गए, ऊपर उठ गए और जोर से दहाड़े हरि बोल। और वो दहाड़ पूरा प्रदेश में, पूरा कंट्री में, पूरा बंगाल में गूंज गया। बादशाह के कान में गया, बोले तो हरिदास को हरि बोल कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। बादशाह भागे भागे आए, बोले आप जीवित हैं? बोले किसको भगवान बचा, किसको कौन मार सकता है? जिसके रक्षक वह नंदन माधव कुंज बिहारी, तिनको मार सके न कोई, कर लो जतन हजार। जिनके रक्षक नंदन माधव कुंज बिहारी, श्याम सुंदर माखन चोर, वो जिनकी रक्षा करते हैं, कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी चेष्टा कर लो, कितना भी उपाय कर लो, उसको कोई मार नहीं सकता। और मैं प्रमाण हूं, देख रहे हो मैं जीवित हूं। राजा जो था वो बादशाह उनके चरण में अपना सिर रख दिए, पाही माम रक्ष माम, क्षमा करो। अगर आप हमारे अपराध को लेंगे तो मेरा कभी उद्धार नहीं है, क्योंकि भगवान के दूत हैं, आप अद्भुत हैं, आप चमत्कार हैं जो जीवित हरिनाम करते, हमारे भी मंगल करें, हमें भी आशीर्वाद दे कि मैं ऐसा अपराध और न करूं, ऐसा क्षमा मांग के चले गए। हरिदास ठाकुर जी अपना भजन कर, कुटिया में बैठ कर हरिनाम कर रहे हैं। एक बार कोई व्यक्ति आया, इस पर नाग देवता आविष्ट हो जाते थे, और जब देवता और नाग देवता पर आविष्ट होते तो नाग की तरह बहुत सुंदर नाचता, पूरा शरीर को हिलाते, ऐसे ऐसे नाग नाचता, नाग बहुत ऐसे ऐसे करके नृत्य करते, बहुत सुंदर नृत्य। और उस भाव में आ जाते जैसे मानो वो कालिया के ऊपर नाच रहा, जैसे भगवान कालिया के ऊपर नाचे थे, इस तरह से नाचने लगता। और उस भाव में आकर के
वो कालिया मर्दन की लीला गाने लग जाते। कांडव बैठे मुंडन पर नाचत गिरे ठाड़ी, पम 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 पट पट कर फन फन पर फनन पर जिम 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 कर नाग पर विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकर गम गम मुनि गंधर्व नाचत देखारी, ससिक ससिक सनकादिक नारद मुनि मम महादेव बम बम बलिहारी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी, धन 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 चरण परत निर्भय भय। ऐसे कर को नाच। हरिदास ठाकुर जो वहां से जा रहे थे कीर्तन करते हुए सुने, अरे तो मेरे प्रभु का गुणगान करे, मेरे प्रभु नाच रहे हैं कालिया के ऊपर, उस गीत को गा रहा है और वैसे ही नाच भी रहा है। तो हरिदास ठाकुर जी वहां पर खड़े हो गए और वो भी आवेश में आ गए, और जैसा वो नाच रहा था उससे तो सुंदर ही नाचने लगे। क्योंकि भी कम ने ब्रह्मा जी है, भले लीला हरिदास ठाकुर हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी चारों वेद जिनके चारों मुख पे विराजता है, वो सारे कलाओं के गुरु, कितना सुंदर नाचने लगे कि जो नाचने वाला जो था बेटा सपेरा, वो खड़ा हो गया एक तरफ, और हरिदास ठाकुर जी भाव को देखने लगे। वो नाचते नाचते जमीन में ऐसे गिर जाते हैं जैसे कोई कटा हुआ पेड़, या कोई आंधी में पेड़ जैसे धड़ाम से गिर जाए, ऐसे गिर पड़े जमीन पर मूर्छित हो। उनको उस भाव को देख करके, नृत्य को देख करके जो वहां पर भीड़ आई थी देखने के लिए, वो सब हरिदास ठाकुर जी के चरण धूली ले रहे हैं अपने मस्तक, पूरे शरीर में लगा रहे, अपने को पवित्र कर रहे हैं, और सब रो रहे हैं, सब भाव में विभोर हो रहे, खूब उनको सम्मान दे रहे, जय जयकार करे हरिदास ठाकुर की जय, हरिदास ठाकुर की जय। एक गांव का ब्राह्मण, वो देखा कि तो बड़ा अद्भुत है, अगर लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहिए तो थोड़ा सा एक्टिंग करो। ये देखो हरिदास रास्ते से जा रहा था और थोड़ा सा भाव दिखा दिया, थोड़ा नाच लिया, थोड़ा मूर्छित हो गया, ये सब इसको इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी इसकी पूजा कर रहे हैं, कुछ नहीं किया, खाली थोड़ा सा नाचा, रोया, गिर गया है, तो बोले सबको मैं उल्लू बनाऊंगा, मैं इससे ज्यादा सम्मान पाऊंगा। वो भी रोने लगा, झूठ करके जोर से आग को दबाया और आंसू निकाल दिया, नाचने लगा और धड़ाम से गिर गया। हे प्रभु, हे भगवान, अच्छा ऐसा करना, जमीन पर लौटने लगा। तो जो एक नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है, और एक बना के जितना भी करो वो ड्रामा पता चल जाता है भक्तों को। जब उसका भाव को देखे तो समझ गया वो जो भक्त जो था, क्योंकि वो बीच में गिरा, जहाँ पर वो नाच रहा था व्यक्ति, वहां पर गिरा, उसको उस भाव में बाधा भी नहीं उत्पन्न कर दिया, उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि भाव में डूबा था, और ये बीच में ऐसे आ गया, मतलब ईर्षा के मारे जलन में ऐसा दिखाने के लिए कि मैं भी उसके जैसा ही सम्मान पा लूंगा। तो उसके हाथ में दीना था, ये डंडा, इसको लेकर ऐसे अभिनय कर रहा था, तो डंडा से उसको ऐसे पीटने लगा जैसे हरिदास ठाकुर को बाज बजाने पीटा गया था, ऐसे उसको पीटने लगा। आंख में मार रहा है, नाक में मार रहा है, मुंह में मार रहा है, कान में, सिर में, छाती में, पैर में, पेट में, सब धड़ाधड़ मारने लगा। इधर इधर ऐसे करते थे, इधर इधर इधर, उसको इतना परेशान हो गया कि 2 मिनट में वहां से उठ के भागा। बाप रे बाप, बाप रे बाप, जहाँ पर हरे कृष्ण करे थे, हरि बोल भूल गया, बाप रे बाप, बाप रे बाप करते हुए भागा गांव की तरफ, बचाओ बचाओ।
उसके बाद में कुछ देर बाद गांव वाले से पूछे कि महाशय आपने क्या किया? हरिदास ठाकुर जब नाच रहे थे तो आप सम्मान से एक तरफ खड़े हो गए, और जब हमारे गांव के ब्राह्मण नाचने लगा तो उसको इतना मार दिए। बोला ये ड्रामाबाज था, ईर्षा में ऐसा कर रहा था। पता चल गया तो भाव में नहीं था। मार खाने के बाद भगवान भूल गए, बाप बाप कहने लग गए। हरिदास ठाकुर जितना मार पड़ने के बाद में बाप बाप नहीं बोले, कृष्ण कृष्ण ही बोले। तो जो इसलिए किसी परिस्थिति में कृष्ण को नहीं भूलता वो वास्तव में शुद्ध भक्त है। और जो गंगा किनारे गंगाराम, जमुना किनारे जमुनाराम, जहां गया वहीं का हो गए। जब जैसा तब तैसा करते बदलते रहते, छन छन में गिर के तरह। और प्रतिष्ठा लेने के लिए सोचते हैं ज्यादा भीड़ है, इनके साथ मिल जाऊंगा तो मेरा भी फोटो आ जाएगा, मेरा भी हाईलाइटेड हो जाऊंगा। दिन में घूमते रहते कहाँ पर ज्यादा लोग हैं, कहाँ पर जाने से ज्यादा वाहवाही होगा, ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो भक्ति ऐसा नहीं। भक्ति के जगह पर जहां पर कुर्बान हो गए, दे दिए उनके। ऐसे हरिदास ठाकुर रास्ते में उस पर से कीर्तन करते जा रहे, किसी ब्राह्मण ने उनको पकड़ लिया। ये जोर से क्यों बोलता? धीरे से बोल, मन में बोल। कहाँ लिखा है जोर से बोलना? हरिदास ठाकुर जी बोले हाँ, मन में हरि नाम किया जा सकता है, धीरे धीरे भी किया जा सकता है, लेकिन मन में करने से, धीरे धीरे करने से वो अपना कल्याण करता है, और उच्च स्वर बोलने से सबका कल्याण करता है। क्योंकि जब उच्च स्वर में कहता है तो ध्वनि सभी लोग सुनते, पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु मनुष्य सब सुनते। मनुष्य लोग तो सुन को उच्चारण कर सकते हैं, जो पशु है भले ना बोले लेकिन कान में ध्वनि तो टकराता है, वो मंगलमय ध्वनि, उस उनका मंगल होता है। और ध्वनि टकराने से अगला जन्म उनको अच्छा हो जाएगा, मनुष्य घर में आके भजन करेंगे, तो सबका कल्याण हो, इसलिए उस स्वर से किया जाता है। ऐसा शास्त्र का विधान है, शास्त्र में ऐसा कहा, वचन दिए उच्च स्वर कीर्तन करने से पुराण में सबका मंगल हो। तो ब्राह्मण जो था वो चिढ़ गए, और ठीक कहा गया कलयुग बहुत पास में आ गए। कलयुग में लोग शूद्र होंगे, जो होंगे वो लोग वेद करता हो जाएंगे, वेद का तात्पर्य बतलाएंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन वास्तव में हरिदास ठाकुर जी किसी वर्ण आश्रम में नहीं। जब कोई भगवान का भक्त हो जाता है तो उसका एक ही परिचय है, तो वैष्णव, अच्युत गोत्र। उसमें कोई भी वर्ण या कोई भी आश्रम उसमें लागू नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ण आश्रम से अतीत होता है। तो भगवान का तो शुद्ध धर्म में आत्मधर्म प्रतिष्ठित, लेकिन उनके प्रति हिंसा करने लगे। वहां पर वृंदावन ठाकुर दो पद उद्धृत किए हैं, एक बड़ा पुराण का, एक पद्म पुराण का। तो कहते हैं कलयुग में जो वैष्णव नहीं होंगे, और अगर कहीं किसी भी कुल में, ब्राह्मण आदि कुल में जन्म लिया और वैष्णवता को नहीं स्वीकार करता, तो एक प्रकार से राक्षस ही, और उस कुल का आश्रय लेकर के उत्पन्न ब्रह्म कुले बाधंते श्रोत्यान, जो वेद शास्त्र को मान करके नियम में जो भक्ति का पालन करते हैं, जो आचरण करते हैं, उनको लोग बाधा दें, उनको जाति की सीमा में बांध। लेकिन जब उस चीज में प्रतिष्ठित हो जाता है, वहां पर जाति लागू नहीं होती, वहां पर आचार लागू होता है। आचार प्रभवो धर्म, धर्म की उत्पत्ति आचार से हुआ।
जिसमें आचरण है वो उसमें प्रतिष्ठित है, वो उसके बारे में बोल सकता है। और अगर आचरण में नहीं तो प्रतिष्ठित नहीं है तो कोई भी उसका अधिकारी नहीं, क्योंकि आचारवान पुरुषों में जो आचरण करता है वो व्यक्ति वेद है, वो शास्त्र है, उसका वचन मानना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर जी आचरण करते, उन्होंने शराब, मांस, मदिरा, गलत सब त्याग करके शुद्ध रूप से हरिनाम करते। इसलिए जब शांतिपुरिया में रहते थे, अद्वैताचार्य जी ब्राह्मण श्राद्ध कर गए, अपने पिता के लिए कैसे श्राद्ध कर रहे अपने इसके लिए। तो श्राद्ध में बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाए थे, बहुत वैष्णवों को बुलाए थे प्रसाद देने के लिए। लेकिन श्राद्ध का जो पहला पात्र था, तो प्रथम कौन श्राद्ध का पहला अधिकारी होगा? हरिदास ठाकुर जी को ले जाकर पहला प्रसाद उनको बोले आप पाइए। आपको पाने से करोड़ों वैष्णव भोजन, ब्राह्मण भोजन हो गए। तो दिखाए अद्वैताचार्य ब्राह्मण कुल में जन्म, लेकिन दिखाई कि ऐसे शुद्ध वैष्णव को भोजन कराने, ऐसे शुद्ध भक्त को देने से इसकी कोई तुलना नहीं। एक शुद्ध वैष्णव अगर कुछ बात बोलता है उसको साधारण मत ले, जिसके बात को भगवान भी मानो। भगवान जो कहते हैं वेद से अतीत हूँ, वेद भी मुझ पर शासन नहीं कर सकता, वो भक्त के बात को वेद से भी अधिक मानते। और हरिदास ठाकुर जी बोल रहे उसमें जाति बुद्धि ला रहे हैं, तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वेद की बात कैसे करोगे, तुम शास्त्र की बात कैसे करो। तो कहते जो वैष्णव नहीं होते कोई भी वहीं आता है अत्यधिक बहुना उगते न, बहुत कहने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणा भी अवैष्णव, जो ब्राह्मण है लेकिन वैष्णव नहीं है, उनका स्पर्श, उनसे संभाषण परमार्थ भी नहीं करना चाहिए। एक भक्त के साथ ही बात करना चाहिए। यदि कोई भी बनने का भक्त नहीं है तो बोले उससे बात मत करो, उसको छुओ भी मत, उससे पवित्रता होगा। और अगर वैष्णव है तो कोटि तीर्थ के समान है, तो फिर किसी जाति पर में हो, उसमें कोई नहीं। ब्राह्मण है वैष्णव तो अति बहुत सुंदर है, तो सोना में सुहागा। तो हरिदास ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। जब उन्होंने कहा कि तुम शास्त्र कर्ता बन गए तो चुपचाप वहां से उठ के चले गए। तो उन्होंने पूछा था कि ऊंचा स्वर से क्यों कहते हो? उन्होंने बताया कि कहने सबका कल्याण होता है। सुन को चिढ़ गया, बोला कि तुम हमको शिक्षा दे। वो तो कुछ बोले नहीं, चले गए, लेकिन उनका नाक मुंह हाथ सब गल गए। वो अलग चीज है, वो अलग, उसको भी वो तो गोपाल चक्रवर्ती है, इसको भी ऐसा हुआ। तो ऐसे वैष्णव प्राप्त करने से होता है। एक गोपाल चक्रवर्ती था वहाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता जो थे हिरण्य दास, गोवर्धन दास हिरण्य, उनका वही था। इस कारण मतलब टैक्स लेने के लिए आता था, कलेक्टर था, टैक्स कलेक्शन करता। तो एक दिन टैक्स लेने आया वहाँ पर, तो पूरे साल में बहुत सारे टैक्स देते थे, 12 लाख। तो टैक्स लेने आए तो हरिदास ठाकुर जी गए थे, उनको बलरामचार्य जी के एक प्रकार से शिष्य, बलरामचार्य उनको अपने गुरु रूप में मानते हरिदास ठाकुर जी। और बलरामचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी के कुल गुरु हैं और उनको पढ़ाने वाले भी गुरु हैं, व्याकरण आदि सब उनसे पढ़े। तो अचानक वहां पहुंच गए। हरिदास ठाकुर है, बलरामचार्य बैठे, रघुनाथ दास भी बैठे, छोटे उम्र है, और उनके पिता भी बैठे हुए दोनों ताऊ जी। और उसमें चक्रवर्ती आ गए और हरिदास ठाकुर जी से वार्ता होने लगे। तो बोले कि आप मुक्ति के बारे में क्या समझते हैं, जीवों की मुक्ति कैसे हो सकती है? तो हरिदास ठाकुर ने मुक्ति क्या थी? मुक्ति तो सुक्ति है, नामाभास से मुक्ति हो जाती है। शुद्ध नाम करने से भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति होती है। अगर कोई नामाभास भी करे तो पाप नाश और मुक्ति तो अनायास हो जाए। तो चक्रवर्ती बिगड़ गए, बोले आप इतनी बात कह रहे, इतनी बड़ी बात कह रहे, जिस मुक्ति को पाने के लिए लोग कितना साधन भजन इंद्रिया संयम आदि करता है,
और उसको कहते ऐसे ही नामाभास से हो जाता है। बोले हाँ, अजामिल को बोला पुत्र के नाम बोलने से उसको जमदूत से तुरंत विष्णुदूतों ने छुड़ा दिया, मुक्त कर दिया बंधन से। वो शुद्ध नाम नहीं किया था, नामाभास किया था, प्रमाण, और मुक्त हो गया बंधन से। जमदूत उसको ले जा नहीं पाए। बाद में जब शुद्ध नाम किया तो भगवत धाम को चला गया। तो वो भी ऐसे बिगड़ करके वहां से गया, तो वहां पर हरिदास ठाकुर जी वहां उठ के चले आए। और बाद में गोवर्धन दास हिरण्य मंजुलदार दोनों उनको वहां से डांट के भगा दिया, और मेरे पास गया ने अपना मुंह नहीं दिखाना, तुम वैष्णव करा दो। वैष्णव की बात पर विश्वास नहीं करते हो, शास्त्र की बात कर रहे हो, फालतू अनर्गल नहीं बोल रहे, उसको मान के ही चलना पड़ेगा। तो उनको भी ऐसे होगा, कुछ आदि हो गया, वो भी बहुत पीड़ा पाए, बहुत कष्ट पाए। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जी फुलिया से चल के मायापुर आए, और श्रीवास आंगन में कीर्तन में नित्य दंड कीर्तन हरे कृष्ण करते हैं। और नित्यानंद प्रभु जी के साथ ये कीर्तन में जाते, महाप्रभु जी का आदेश इनके प्रति था, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास सर्वत्र अमार आज्ञा कर प्रकाश, प्रति घरे घरे दिया कर हे भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, यह बिना आर कर छु बल में न बलाए में दिन अवस्था ने आसी अमाई कर। यही बोलना सबको, यही सुनाना सबको, यही सिखाना सबको। तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर जी हर घर में जाके भी बोलते हरि बोल, यही भिक्षा दो हमको। जगाई माता के पास भी चले गए, मांगते मांगते लोग मना किए, लेकिन चले गए। और वहां पर नित्यानंद प्रहार जो हुआ, मधाई ने जब प्रहार किया, तो हरिदास ठाकुर वहां से दौड़े दौड़े आए और महाप्रभु से निवेदन किए। तब महाप्रभु जी तुरंत वहां पर उपस्थित हुए, सुदर्शन चक्र से उसको मारना चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी क्षमा कराए। तो प्रेम वितरण में हरिदास जी साक्षी है। संन्यास लीला के समय की कथा हरिदास ठाकुर जी ने कर दिया। संन्यास के बाद जब पुरी में आ गए, तो हरिदास ठाकुर यहाँ पर हरिनाम करते, दूर से जगन्नाथ जी के पताका दर्शन करते। महाप्रभु प्रातः काल जब मंगला की दर्शन करने जाते हैं, तो वहां से कुछ प्रसाद लाकर उनको देते हैं। और सबसे पहले महाप्रभु जी जगन्नाथ दर्शन के बाद हरिदास जी के कुटी पे जाते हैं, हरिदास ठाकुर का दर्शन करते, प्रणाम करते हैं, प्रसाद लेते हैं। रूप सनातन गोसाई गए थे, इनके कुटी में रहे। जब नाम की महिमा रूप गोसाई वर्णन करे, तो हरिदास ठाकुर जी खूब नाचने लगे थे। वाह, कितना सुंदर नाम की महिमा लिखो, मैं नाम के बारे में बहुत सुना हूँ, बहुत अनुभव किया हूँ, लेकिन ऐसा नाम कुंडे जाने में नहीं आती। और नाम की महिमा के बल पर ही कथा सुने, वेश्या को शुद्ध कर दिया, परम वैष्णवी बना दिया, और सीधा वैष्णवी है लोग परम महांती बड़ वैष्णव का दर्शन होते जाए। तो ऐसा प्रसिद्ध वैष्णव में महान हो गए कि जब तुलसी जी के सामने बैठ कर हरिनाम करती है, परिक्रमा करती है, तो बड़े बड़े वैष्णव आकर उनको दर्शन करते, प्रणाम करते, आशीर्वाद लेते। एक बार माया देवी भी आए हरिदास ठाकुर से, बोले हमको कृष्ण प्रेम दो, हमको हरि नाम दो, मैं जीवों को माया में बांध करके बहुत परेशान हूँ, हमें मुक्त कर दो। तो माया देवी जो माया है, जो जिनको बांधते ममा माया दुरत्तया, वो माया भी चाहती है मुक्त हो, जो भगवान के चरणों में चले। उनको हरिदास ठाकुर जी हरिनाम दिए। भागवत में आता है, भागवत के श्रीमद् में, माया दासी प्रेम मांगे तीर्थी की विस्मय, साधु गुरु कृपा बिना प्रेम न हो। माया देवी जो प्रेम मांग रहे, भक्ति मांग रहे वैष्णवों से, साधु से, ये आश्चर्य की बात नहीं। बिना गुरु साधु वैष्णव कृपा प्रेम नहीं प्राप्त। ऐसे हरिदास ठाकुर जी नाम की महिमा को जगत में स्थापित किए। 3 लाख हरिनाम करते, सब श्रवण किए, कुछ उपांशु करते हैं, कुछ थोड़ा बोल के करते हैं, और 1 लाख हरिनाम को ईश्वर में कीर्तन करते। एक दिन महाप्रभु जी प्रार्थना कर आए, बोले हरिदास सब ठीक है? तो बोले प्रभु सब ठीक है, लेकिन पहले जैसा हरिनाम नहीं हो, अवस्था हो गई, 3 लाख नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं रहना नहीं चाहता, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, आप हमको बातचीत मत करो, बस मेरी अंतिम इच्छा पूरा करिए। क्या क्या चाहिए? बोले मैं शरीर छोड़ते समय आपको देखूं, जैसे कृष्ण पितामह आपको देखते हुए प्राण त्यागे थे, ऐसा हमको अवसर दो। एक दिन प्रातःकाल महाप्रभु जी आए और हरिदास ठाकुर के चरणों में अपने हृदय पर रखे, अपने 2 आँख की भौरा को उनके मुख कमल में लगा दिए, उनके मुखार में उनके
मकरंद को पीने लगे और इतना अविष्ट हो गए कि आंखों आंखों में अपना प्राण उनमें मिला दिए, उसके साथ जोड़ दिए और शरीर को कब उच्छेद कर दिए भीष्म जी की तरफ पता नहीं चला। इसको बोलते स्वेच्छा, इच्छा मरण, अपनी इच्छा से शरीर त्याग करके भगवान के धाम में नित्य काल के लिए स्थान हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यही आज उनका तिरुभाव तिथि है। और महापुरुष उनको लेकर के क्या Chaitanya Bhagavan says this Muslim king, even though he asked the demons from Haridas Thakur, but still king and all these Muslims don't die very quickly. You cannot understand because he asked the demons that why he still died. धीरे धीरे गया हो जाता है ऐसे वैष्णव पर, क्योंकि वैष्णव लोग क्षमा कर देते हैं लेकिन उनके जो चरण धूलि और क्षमा नहीं करते। इधर सावधान रहते हैं, हरिदास ठाकुर जी क्षमा नहीं किए लेकिन धूलि का ऐसा प्रभाव है वो जला देता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। वैष्णव लोग नहीं करने से भी अगर वैसा दंड नहीं देगा तो लोग उसको मजाक समझ लेंगे। इसलिए वैष्णव जो तत्व है केवल हरिदास ठाकुर जी अकेले वैष्णव नहीं, वैष्णव समग्र तत्व, अखंड तत्व, और वो तत्व उसको नहीं छोड़ते, वो उसमें अनवॉल्व हो जाते हैं। हम चाहेंगे इसका अमंगल न हो लेकिन वो तत्व है वो उनको दंड दे देते हैं, इसलिए दंड देते हैं जिससे लोग सावधान हो, ऐसा अपराध न करें। नहीं तो कोई नियम नहीं रहेगा, बोलेगा अपराध कर लो क्षमा हो जाएगा, इसलिए डरने की बात नहीं। तो उन्होंने तो क्षमा कर दिया लेकिन वो तो एक अखंड तत्व वो लोग क्षमा नहीं करते क्योंकि उनको नियम से चलाना होता है, ऐसा हो जाता है, दंड मिल जाता है। तो उसके बाद में महापुरुष उनको अपने गोद में उठाए और कीर्तन करते हुए उनके शरीर को अप्राकृत रूप में गंगा जी समुद्र के तट पर स्थापित किए और वहाँ पर स्नान किए, जहाँ पर हरिदास जी को स्नान कराए, वहाँ सब भक्तों ने स्नान किया और बोले महातीर्थ हो गए। तो वैष्णव जो जिस जगह को छूते हैं वो गंगा आदि से भी अधिक हो जाता है, सारे तीर्थ वहाँ पर बसते हैं। वहाँ स्थान पर आज जो लोग जाते हैं तो दर्शन स्पर्श स्नान करते हैं। फिर जगन्नाथ मंदिर में आए और इनके पास तो कुछ नहीं है, तो सब माधुकरी वाले बाबा है, वहाँ जाके बहुत सारे माधुकरी इकट्ठा किए। आनंद बाजार के आसपास घूम घूम करके जितना दाल चावल सब्जी खाजा मिठाई जो जगह न जगह था वो सब मांग लिए, भिक्षा मांग करके पूरा पहाड़ बना दिए, चावल का दाल का बड़े बड़े पात्र भर के और सबको बैठा करके महामहोत्सव के सबको महाप्रसाद दिए। उनके सम्मान सब पाए, महापुरुष ने सबको आशीर्वाद दिए कि हरिदास ठाकुर के इस समय जो भी सम्मिलित हुआ, जो कीर्तन में आया, जो उनके साथ समुद्र तट पर गया, जो गड्ढा खोदा, जो उनको समाधित किया, जो उसके ऊपर मिट्टी डाले, जो नाचे गाए रोए, जो प्रसाद पाए, जो जय हरिदास बोले बोले सब के सब हरिदास जी की तरह उनके धाम में चले गए। और महापुरुष जी रोने लगे, हरिदास अखिल पृथ्वी रे शिरोमणि, महापुरुष जी के वचन पृथ्वी के शिरोमणि, ऐसा वैष्णव न भूतो न भविष्यति। आज उनके चले जाने से कहा बिना रत्न सुन है रत्न शून्य, पृथ्वी में एक बहुत बड़ा रत्न को हरा दिया, बहुत बड़ा झूल चला गया, पृथ्वी श्रृंगारहीन हो गई। ठाकुर वैष्णव पद अवनील सुसंपद, सुना भाई भैया, ठाकुर वैष्णव जो होते हैं ये पृथ्वी के भूषण है, संपत्ति है, उनके चले जाने से पृथ्वी भी भूषणहीन हो जाती है, श्रृंगार उनकी शोभा भी कम पड़ जाता है, कम हो जाता है। देखेंगे आज भी कुछ श्रेष्ठ वैष्णव जाते हैं, यहाँ की शोभा, यहाँ का सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य कम पड़ जाता है, श्रीहीन जैसा लगता है। अभी भी देखेंगे जिस आश्रम में बड़े बड़े वैष्णव रहे वहाँ आज नहीं है, तो वहाँ पर पहले जैसे चमक दमक और शोभा नहीं है, थोड़ा कम हो जाता है। अभी प्रत्यक्ष अनुभव की चीज है। आज उनके चले जाने से पृथ्वी रत्न शून्य हो गए, श्रृंगारहीन हो गया। बोलो श्री हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जो नाम की महिमा को जगत में प्रचार किया, प्रकाश किया, ऐसे हरिदास ठाकुर जी कृपा करें। कोई भजन साधन तो नहीं होता, बस कृपा करके अपने पास ले चलो, क्योंकि हम लोग सब कृपा वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं है। कृपा करो कृपा करो, फिर भी जय हो करो, जय हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अगर कोई ऐसा भी हरिदास हरि ठाकुर कहता है तो उनके जैसा स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेगा।
हम लोग के पास कुछ नहीं, हम ऐसे गुरु जन्म के जय जय करेंगे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, जय जय हो, हरिदास तुम्हारी जय जय हो, ऐसे ही कर सकते हैं। फिर आज हरे कृष्ण भज मन है, राधा माधव बिना तेरा हरे कृष्ण भज